So today we will. Good morning to all of you. Myself, Professor Naveed Akhtar Mirza from Maulana Mukhtar Ahmad Technical Campus. This is our 17th lecture in the environmental studies, and we are going to start the unit number 4 of this environmental studies. Due to the presentations and we are going fastly toward the completion of our syllabus, but if any point of time, if you are now feeling that you have to understand some other topic, you can uh, message me on WhatsApp or on my personal. No issue. I will send you the lecture material. Already the lecture materials are given on your class, Google Classroom, and other MCQs, etc. are also available on the internet. And also, whatever I am prepared, you am sharing to you today as per the unit wise. So to third unit already, all the MCQs questions are given to you, and now the unit number four we have started. So it is very broad and vast unit. Unit number four is the environmental pollution. Yesterday we have seen the recap, the whatever syllabus we have covered in unit number one, two, three, uh, and now we will start the unit number uh, four. So unit one is about the your environment basics, and unit number two is about the energy resources. It may be renewable, non-renewable, conventional, non-conventional, natural or artificial. You can say there is no artificial things. We are developing the things from the natural resources only to get the energy for our work to be done or for driving our mechanical machines, etc. Also, the in unit number three, we have seen the ecosystem and the biodiversity. In that case, we have also discussed about the ecosystem, what is ecosystem, and what is the biodiversity, levels of the biodiversity, and the threats and hotspots of the biodiversity. Also, the conservations of biodiversity by using the many other means. Okay, so gene bank, a seed bank, huh? A national park, and many things uh, to save our ecosystem. We are doing nowadays botanical garden. Also, we are developing to save the species so that the species will not be extinct or they will not be uh, they will be available for the study. तो एक्सटिंक्ट यानी खत्म होना, तो बहुत से ऐसे स्पेसीज है जो दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए हम बॉटनिकल गार्डन और बायोलॉजिकल रिजर्व, नेशनल पार्क और दूसरे ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेस, जीन बैंक, सीड बैंक, वी आर जो construction or making or for the conservation of this biodiversity. Okay, so it is very important to maintain the ecological cycle by this biodiversity. So we proceed now for our unit number four, that is the environmental pollution, and it is nothing but our course outcome of
apply the technique to reduce the environmental pollution. So this is unit number 4, the environmental pollution, and we will see in unit outcome of 4A, 4B, and 4C. That is the what is the pollution? State the sources of pollution, and state the effect of land pollution on the environmental and the. So one by one we will go through it. First, what we will learn today is the definition of pollution and types of pollution, causes of land pollution, effect of land pollution, and prevention of land pollution. This presentation was made by Dr. B.R. Ambade sir. We are very thankful to him, the very valuable uh, material he has provided to learn the student. Also, it helps to the faculties. Uh, but that is we will see today. And so we will start with the what is the pollution. Pollution is nothing but the undesirable changes in the environment due to contamination of harmful material that have adverse effect on living things and natural quality of environment. These harmful materials are called as pollutant. तो हम लोग ने हम जो इन्वायरमेंटल स्टडीज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ताकि इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, जो हमारा माहौल है, उसको हम बेहतर बना सकें और बेहतर कर सकें। और जो माहौल में वेस्ट या पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, चाहे वो लैंड का पोल्यूशन हो, चाहे वाटर का पोल्यूशन हो, चाहे एयर का पोल्यूशन हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको इन सब बातों का इल्म हो। जब इल्म होगा तभी हम कुछ उसके ऊपर से हम काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई अगर आप इस तरह से हमारी वैल्यूएबल लैंड को, वाटर को, एयर को अगर आप पोल्यूट करते रहेंगे तो ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग पर ही नहीं, बाकी दूसरे जानदारों पर भी अफेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम यही पढ़ रहे हैं कि जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट है, उनको किस तरह हमने रिड्यूस करना है, हमने किस तरह रिड्यूस करना है। Okay, so that is why we are studying this subject, and it is very important uh, uh, to learn and to aware about the environment to the people and nearby you in the society to develop a good uh, pollution-free environment uh, for the living organism around you. So this pollution is nothing but the contamination of the materials. Materials may be in the form of gases, in the form of metal, in the form of e-waste, nowadays very common, in the form of acids, in the form of agro-pesticide, in the form of domestic waste, in the form of radioactive waste. All these are the examples of the pollutant. So they are nowadays the use of such materials or such things to get more product or more uh, quantity of the product uh, so that uh, we can fulfill the needs of
ओवर पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन सिर्फ ओवर पॉपुलेशन ये एक कॉज है क्या हमारे इन सब का? नहीं। अर्बनाइजेशन, अननेसेसरी अननेसेसरी जो हमारी नीड के ऊपर ग्रीड है, लालच है इंसान की, कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो इतना फायदा होगा। ये फायदा जो नीड की बजाय ग्रीड में बदल गया है, उससे हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट। वैल्यूएबल ट्रीज जो लैंड्स पर हैं उसको कट कर रहे हैं, वेजिटेशन कवर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारे वेस्ट है वाटर बॉडीज में, उसकी वजह से वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। और उसके अंदर जो लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स है, फिश है और जो दूसरे कल्चर एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर दे आर लिविंग, so they are also hampering. Also, by use of plastic and many such materials, they are persistent in the environment for the lifetime. They are also the use there is harming our environment. So there are pollutions are of two type. You can say uh, दो टाइप के पोल्यूशन है। एक तो नेचुरल, द नेचुरल पोल्यूशन is caused by is caused and produced by naturally and will not affect our environment because of its regeneration ability. तो नेचुरल पोल्यूशन से हमारा इतना कुछ नुकसान नहीं होता है जितना कि हमको नुकसान मैन मेड पोल्यूशन से होता है। तो दूसरा जो टाइप है दैट इज द आर्टिफिशियल, आप बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं बोलते हुए हम लोग उसको बोलेंगे कि इट इज द बाय द मैन मेड। तो animals, other animals, or another living thing, they are not impacting or polluting the environment. Only the social animal, that man is the responsible for the pollution into the environment, and it is affecting the public health also in a huge amount. And these pollutants are from the industries and some machineries we are using for our needs or our purpose. With automobiles we are using the non-renewable energy source for the automobile vehicles to run. Industrialization, many chemicals, harmful chemicals to produce or to make a more faster production, and we are using the chemicals and other harmful things. Also, the sewage, solid waste from the domestic or you can say industrial. Also, they are uh, making our earth polluted. So there are types of pollution. You can say that there are many types of pollution. Uh, if the pollution on the land or on the lithosphere, you can say that pollution is the land pollution. If the pollution in the hydrosphere, that is water bodies, then that pollution is termed as water pollution. And if the pollution in the form of gases and we are releasing into the environment due to certain activity is called as air pollution. And जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से होता है, क्योंकि एक टन सीमेंट बनाने की तो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अ, हवा में खारिज करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। हमारे ओजोन लेयर डिप्रेशन भी उसी वजह से हो रहा है। और बहुत सारे डिस्टर्बेंस जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, that is due to the air pollution, that is in the form of gases. And also the refrigeration gases we are using, they are also very harmful.
So they are creating the air pollution. Already we have studied about that, and the noise pollution due to traffic. We are using the horn and many such machineries and equipment we are using. They are very noisy. So like that, many such pollutions we are creating our own, and only the human being is responsible for the this pollution. Now we'll come to the first one, the pollution on the land. We'll come on the first one, the pollution on the land. So land pollution और soil pollution अगर हम बोलते हैं तो you can see the it affects the uh, very our valuable land and useful land for the agriculture purpose. So in photograph also you have seen and many such photographs you are seeing day by day and physically in our एरियाज ऑल्सो मोहल्ले के जो नुक्कड़ है जहाँ पर कचरे के डब्बे रहते हैं वहाँ आप देखते होंगे कि किस तरह वेस्टेजेस हम करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि अ, जो वेस्टेजेस है वो टायर का या फिर प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा होता है और आपको मालूम है कि प्लास्टिक इज वेरी harmful. It is a persistent in nature. It is non-degradable in soil, and that's why the land pollutions are very much. The fertility and the structure of land adversely altered due to contamination of undesirable material is called as land pollution. So soil is the thin layer of mixture of minerals, organic matters, and inorganic materials, air and water. So that's why the soil pollution is affecting and if the pollutions uh, are there into the soil, it will affect our root zone of your vegetation cover and the trees, and it will harmful for that. Also, the water bodies underground is also affected. So land pollution is the demolition of earth, land surfaces often caused by human activities and their misuse of land resources. So it occurs when waste is not disposed properly. तब होता है ये जबकि जो वेस्टेजेस हैं उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं. We can no more manufacture a soil. The soil is a resource for which there is no substitute. है ना? एक जगह से हमने सॉइल को निकाल लिया, वापस से उतनी सॉइल प्रोड्यूस हम ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकते. इट इज अ बाय द नेचुरल प्रोसेस सॉइल इज प्रोड्यूसिंग and it required lots of time and decade uh, to generate that much of soil by the nature. Okay, and other causes of your land pollutions are the industrialization, plastic factories, chemical plants, oil refineries, large animal farms, coal-fired power plant, metal production factories, and other industries are contributing to land pollution. और आपको मालूम है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हाँ हमको लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है ना. केमिकल निकालने के लिए हमको सॉइल लगता है, ऑयल को वॉश करने के लिए उसको सफाई करने के लिए हमको केमिकल्स लगते हैं और कोल हमको थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लगता है. उससे फ्लाई ऐश बहुत वेस्ट और अबंडेंट क्वांटिटी पे निकलता है जिसको डंपिंग का भी इशू है, उसको रिड्यूस का भी इशू है. और अगर हम डंपिंग करते हैं वैल्यूएबल लैंड के तो हमारा एग्रीकल्चर लैंड का एरिया जो है वो कम होता है. तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोल भी है हमको चाहिए तो हम माइनिंग करते हैं, हमको सीमेंट बनाना है तो सॉइल चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप का सॉइल चाहिए तो हमको माइनिंग करते हैं, हमको कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट इस्तेमाल करना है तो हम माइनिंग करते हैं.
हमको मशीनरीज के लिए मेटल चाहिए तो हम माइनिंग करते हैं। और ला और ये माइनिंग एक लिमिट में नहीं करते हम। माइनिंग हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए, इससे ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे तो देन ओनली वी विल गेट द मोर बेनिफिट। और उसके उसके लिए हम बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल को यूज़ करते हैं, और दैट विल अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो दूसरा जो कॉज है वो माइनिंग एक्टिविटी है, और उससे हमारे इन्वायरमेंट को। देन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, हमको मालूम है कि अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए और हमारी क्रॉप को इंसेक्ट्स को बचाना है, तो हम ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं कि जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। और फिर उस पर जो एग्रीकल्चर हमारे ट्रीज हैं या जो हमारे पौधे हैं जो हमने लगाए हैं हमारे यूज के लिए, तो उसको कीड़े ना खा जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। ये सब पेस्टिसाइड यानी पेस्ट किलर्स, हर्बिसाइड्स यानी हर्ब किलर्स, these are nothing but the chemicals, and they are in long term affecting the valuable। पिछले 2 डिकेड पहले हमने देखा था कि आंध्रा में बहुत से जो किसान हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों खुदकुशी कर रहे थे वो लोग? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उन्होंने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज़ किया, और उससे जो ज़मीन हमारी उपजाऊ ज़मीन थी वो बंजर हो गई, यानी वहाँ पर अब पौधे नहीं लगा सकते। और उनके उनके खेत जो जहाँ पर बहुत गन्ने होते थे, जहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होते थे, ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स और सिंथेटिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उन्होंने सॉइल को पोल्यूट किया, वो ज़मीन को पोल्यूट किया, और वो ज़मीन अब उपजाऊ नहीं रही, यानी वहाँ पर हम कोई भी फसल उगा नहीं सकते, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने एक वैल्यूएबल लैंड को खराब कर दिया, हमारे खुद की ग्रीड की वजह से, ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करने की। और उसका हार्मफुल इफेक्ट ऐसा हुआ कि लाखों में एकर्स ऑफ जमीन जो लैंड्स हैं, दे आर नाउ नॉट यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर। तो दैट इज द also cause of the pollution on land. Also the sewages, large amount of solid waste left over untreated, and the leftover material is sent to landfill sites, which end up in the pollution the environment। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत से सॉलिड वेस्ट हैं जो हमारे घरों से निकलते हैं, या हमारे इस्तेमाल की चीज़ों से जो हम वेस्ट जिसको हम समझते हैं, एक्चुअल में वो वेस्ट नहीं होते। उसको अगर हम किसी और मकसद के तहत सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम वेस्ट समझकर प्लास्टिक को और जो टूटे मुटे हमारे सामान हो जाते हैं हम उनको क्या करते हैं, इसी तरह फेंक देते हैं, और इसी तरह हम इन्वायरमेंट में डंप कर देते हैं, बोलिए। और लार्ज क्वांटिटी में फिर ये डंपिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ले जाकर बड़ी ज़मीन पर डंपिंग करते रहती है, और इतनी बड़ी ज़मीन हमारी जो है वो यूजफुल नहीं है। तो डंपिंग इज नॉट द ऑप्शन। हाँ, अगर आप उस वेस्टेज को सेपरेट करें, सेपरेट करके उसको इस्तेमाल करें, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर दैट। Still today, many people they are joining late. It is not acceptable.
देन द ओवर क्राउडेड लैंडफिल, जैसे कि मैंने बताया, देखिए इस तरह हम हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, टन्स ऑफ गार्बेज हम अच्छी वैल्यूएबल लैंड पर डाल दें। हालांकि उसमें से बहुत से आइटम हम जो डिस्ट्रॉय करते हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे पर्पस के लिए, या उसको सेपरेट करके हम अलग अलग रिसाइकलिंग रीयूजिंग टेक्निक यूज करके वो वेस्ट मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और हम हमारे वैल्यूएबल सॉइल और लैंड को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं इस तरह। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इसकी वजह से जो वेस्ट निकलते हैं, चाहे वो वुड हो, मेटल हो, ब्रिक्स हो, प्लास्टिक हो, उसको भी हम इसी तरह हम डंप करते जाते हैं और फिर वही जमीन पर हमारी वैल्यूएबल जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको अफेक्ट करते हैं, और दैट इज द कॉजेस ऑफ लैंड पॉल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन हम लोग ने पहले भी पढ़ा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हम हमारे वैल्यूएबल लैंड को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे पोल्यूट कर रहे हैं? वेजिटेशन कवर, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो जो रूट जोन जो सॉइल को होल्ड करके रखती है, वो सॉइल रेनफॉल से, है ना, प्रिसिपिटेशन से वो बह जाती है और एक जगह से सॉइल दूसरी तरफ चली जाती है। तो जो सॉइल है उसको होल्ड करती है हमारे वेजिटेशन कवर है, जो ट्रीज है, जो प्लांट है, और उसी को हम कट कर देते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए कि हम लकड़ियाँ इस्तेमाल करने के लिए काट रहे हैं, तो उसी के ऑप्शन में हम उतने पेड़ लगाएं ताकि हमारी जो लैंड है और जो सॉइल है वो उसी तरह महफूज है। और बहुत सारी टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सेव करने के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। तो इसके बाद अर्बनाइजेशन, बहुत ह्यूमन की टेंडेंसी है कि जहाँ पर सहूलियात मिलती हैं या जहाँ पर उसको आसानी से वो अच्छी इनकम कमा सकता है, अर्न कर सकता है, अच्छी सैलरी और वेजेस उसको मिलता है, वो उस तरफ मूव करता है। तो इसी तरह हमारे देहात के लोग एग्रीकल्चर के काम को छोड़कर इंडस्ट्रीज में जहाँ उनको पैसा अच्छा मिलता है वहाँ पर मूव करते हैं, और फिर एक सिटी डेवलप होता है, और इसी तरह अर्बनाइजेशन होता है जहाँ पर पॉपुलेशन रूरल एरिया की बनिस्बत ज़्यादा होती है। तो urbanization imparts additional pressure on land resources for sustenance and food production. तो अर्बनाइजेशन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फूड चाहिए हमको, और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल लैंड वी आर ऑक्युपाइंग बिकॉज populations are large quantity in the urban areas. अब जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से जो कॉजेस है, जो इम्पैक्ट है हमारे लैंड के ऊपर, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग इसकी वजह से हो रहा है। द एग्रीकल्चर रन ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री साइट्स एंड लैंडफिल परक्लोज थ्रू द सॉइल एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। जैसे पहले भी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्ट किलिंग और जो हार्मफुल हर्ब है उनको किलिंग करने के लिए हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। वो रन ऑफ और रेन की वजह से पानी जमीन के अंदर परकोलेट होता है और वो पोल्यूट करता है ग्राउंड वाटर। तो हमारे लिए पीने के पानी अवेलेबल हैं लेकिन वो हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है। तो हम ऐसे वाटर को हम यूज करेंगे क्या? विल नॉट, if that is harmful for our health. Then water nutrients enrichment chemicals such as nitrogen are used frequently on farms. Only a small portion of nutrients end up benefiting the crop, and remaining uh, they ends up in water bodies populated by fish, algae, and other life forms. The nutrients heavy water saps up most of the oxygen in the water, which leaves little for the fish and other life.
तो जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए, एयर से ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड वाटर, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर दे आर यूटिलाइजिंग। लेकिन हम ये केमिकल्स और लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हम एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए हमारे लैंड में यूज कर एज ए फर्टिलाइजर, लेकिन उसका इम्पैक्ट उल्टा होता है और रन ऑफ और परकुलेट होते हैं पानी में और वाटर बॉडीज में, और वहाँ पर वो जो लिविंग ऑर्गेन्स वाटर बॉडीज को उसको वो इफेक्ट करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि आपका जो फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो हैबिटेट है जहाँ का, यानी हैबिटेट मीन्स द स्पेसीज लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स लिविंग इन दैट फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वहाँ शिफ्ट हो गए तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो मेंटेन नहीं रहता, वो मेंटेन नहीं रहता। तो उसकी वजह से भी हमारा इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन और कटिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन और ड्यू टू फायर that will impact and that forced animal to move from one forest to another forest, and that is also very very harmful for our environment. Then deforestation leads to the soil erosion, uh, like wind, rain wash out the top soil layer, resulting in soil erosion. It severely affects that fertility of the land. So mostly the topsoil or soil upper layer of earth is responsible for the agriculture use, but due to region that is also affected, and that is also the part of, that is impact of your pollution on the soil. Increased risk of forest fire. The dry conditions created by pollutant in the soil have to create the perfect environment for forest fire और वाइल्ड फायर। तो वाइल्ड फायर और फॉरेस्ट में जो फायर, जो आग लगती है, तो ड्राई कंडीशन की वजह से वो लगती है, और ड्राई कंडीशन है, और जो हमारे ग्रास हैं, जो प्लांट है, वाटर की किल्लत की वजह से सूख जाते हैं, और थोड़े से रगड़ की वजह से फायर अप हो जाते हैं, कैच होता है, और पूरे के पूरे जंगल फायर की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था, हम लोग ने बहुत से न्यूज़ सुने थे कि जंगल में आग लग गई है, और ऑस्ट्रेलिया की जंगलात में, और वहाँ पर बहुत से एनिमल्स जो स्पेसीज है, दे आर वो जल गए हैं, वो मर गए हैं, दे आर डेथ नाउ ड्यू टू द फायर। इसी तरह the fire will uh, affect the habitat likewise. Then we see the effect of land pollution on humans. Human can also experience negative consequences that can influence quality of life and health. So the potential consequences including birth defect, the development of breathing disorder, skin disease and cancer. तो ये सब हम कॉमनली अब सुन रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं हम लोग, उसको डिफेक्ट है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर है, स्किन डिसीज है, या कैंसर है, या हार्ट का प्रॉब्लम है। ऑल दीज आर ड्यू टू द impact of your pollution on the land. So that land pollution has also been linked to the development of children. The e-waste chemicals that are commonly found in a contaminated soil and water, such as lead, chromium,
cadmium, arsenic, etc., that we are using in the your computer manufacturing companies, and that e-waste available in the soil, they are uh, creating harmful impact on the human life. तो उसके लिए, ये पोल्यूशन के अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम सबसे पहले तो सेग्रीगेशन वाला काम करें, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करें। अभी हमारे पास क्या सिस्टम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम कचरा कई बार भी पूरा मिक्स कचरा हम फेंक देते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले बस उसको उठा कर ले जाकर डंपिंग यार्ड जो है वहां पर डंप कर देते हैं। यही हो रहा है हमारे यहाँ पर। और दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग द प्रॉपर सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। जैसे कि पेपर वेस्ट है, पेपर हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, तो पेपर वेस्ट अलग रखें। ग्लास हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसको अलग जगह पर रखें। प्लास्टिक हम रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं, उसको अलग उसमें स्टोर करें। मेटल जो है हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसको अलग सेग्रीगेट करके। तो अगर इस तरह हम सेपरेशन अगर करते हैं वेस्टेजेस का, इसी तरह गीला गीला वेस्ट, सूखा वेस्ट, है ना, केमिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो हमको उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी आसानी होती है, और उसके लिए प्रॉपर रिसाइकल प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए भी आसानी। एक बार हम कचरा मिक्स कर दें तो उसको सेपरेशन के लिए हमको बहुत एफर्ट लगता है ना। आप जब वाटर प्यूरिफायर प्लांट में जाएंगे, आप देखेंगे स्क्रीनिंग करो, फिर उसको सेडिमेंटेशन करो, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, और फिर उसको ट्रीटमेंट करो, फिर सॉफ्टनिंग करो, है ना, देन वी आर रिलीजिंग द वाटर टू द एनवायरमेंट। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट लगता है। अगर इसी तरह अगर हम डिस्पोज करते रहें, और अगर हमारा डिस्पोजल सिस्टम अगर बराबर रहा, हम प्रॉपरली सेग्रीगेट करके डिस्पोज करें, तो जो कचरा जो इस्तेमाल का है, या रिसाइकल होने वाला है, उसको अलग जगह पर हम अगर इस्तेमाल करें और अलग अलग स्टोर करें, तो इट इज यानी segregated earlier, and directly that recycle plant, we will dump that there, and we will save our valuable land, we are dumping their wastages। ओके, तो हम इस तरह अवॉइड कर सकते हैं सेग्रीगेशन, पहला हमारा स्टेप है। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो हम क्या करें कि ऐसे मटेरियल जो परसिस्टेंट है इन्वायरमेंट में, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स यानी कुछ साल अगर वो जमीन में है तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर ऐसे ऐसे मटेरियल नहीं है तो हम उसको क्या करें, अवॉइड करें, रिड्यूस करें, उसका इस्तेमाल कम करें। तो ये रिड्यूस हो गया। और कुछ मटेरियल जो है, हम शॉपिंग बैग्स है, और हम क्या करते हैं, हर बार जाते हैं शॉपिंग करने, फिर नया बैग लेकर आते हैं, उसकी बनिस्बत जो बैग हमारे पास पहले से अवेलेबल है वो लेकर जाएं, उसी में हम सामान लाएं। इसको रीयूज हम बोल सकते हैं। तो इससे हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के बैग्स है वो कम होंगे अगर हम उसको रीयूज करेंगे बार बार, या फिर ऐसे बैग यूज करें जो कि प्लास्टिक के ना हो, जो रिसाइकलेबल हो। पेपर बैग है, जूट के बैग है ना, so that can reduce the use of non-biodegradable materials such as plastic. It is the large quantity of plastic shopping bags we are using nowadays, और हम हमारे इस्तेमाल से हम हमारे एनवायरनमेंट को खुद हैम्पर कर रहे हैं। इसी तरह reuse material that can still use to reduce the need of harvesting resources, वैसा भी कर सकते हैं हम। और बाय द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, मैंने जैसे बोला कि बायोडिग्रेडेबल
प्रोडल जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, वो हम इस्तेमाल करें। क्रिएट अ डंपिंग ग्राउंड अवे, डंपिंग ग्राउंड बहुत दूर हमारे ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता हो। ऐसे एरिया में अगर हम डंप करें और वहाँ उसका प्रोसेस करें तो दैट इज हेल्पफुल। डू ऑर्गेनिक गार्डनिंग, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें आप। और दैट विल, आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जगह की। आप अब वर्टिकल गार्डनिंग भी होती है, तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग यू कैन डू एट योर होम आल्सो, एंड so that you can reduce the pollution. The conclusion of today's lecture: the negative consequences of land pollution can be greatly reduced with the cooperation of everyone. The health and well-being of all can be protected by making a continuous effort for a safer environment. तो आज के लिए हमने ये किया कि अगर हम सब मिलकर रिड्यूस करें इस्तेमाल को, बायोडिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को इस्तेमाल कम करें, मटेरियल को रीयूज करें, रिसाइकल करें और रीजनरेट करें, तो हम इस तरह हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और एक अच्छे और साफ और सेहतमंद इन्वायरमेंट को हम वजूद बख्श सकते हैं। और ये अकेले का काम नहीं है, ये हम सब को मिलकर करना पड़ेगा, तभी हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी आर द सोशल एनिमल। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पोल्यूशन क्या है, कितने टाइप के पोल्यूशन है, और उसमें हमने सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा पढ़ा। कॉजेस ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या है, उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, और किस तरह हम लैंड पोल्यूशन को बचा सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे इसी तरह आप ज्वाइन होते रहिए और बेनिफिट आप करते रहिए। तो वी विल stop here now because we have another lecture. Thank you for joining.